after COVID vaccination also, a lot many cases are coming which are being diagnosed as brain strokes. टेंशन हेडेक है, आप कुछ हाइपरटेंसिव हो, कुछ और मेडिकेशन ले रहे हो, एंड सडनली बिकॉज ऑफ टेंशन, बिकॉज ऑफ लेस स्लीप, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, सडनली देयर इज अ राइज इन बीपी, देन कोई भी ब्लड की वेसल्स अंदर वो जो है वो रप्चर हो सकती है. मतलब डॉक्टर्स हैव शेयर्ड वेयर पेशेंट की ब्रेन खोली हुई है and he's playing the violin and piano, guitar. I think Fortis also had one of that experience, something like that. So what is it? Say somebody who is doing some binge drinking, alcohol बहुत ज़्यादा लेते हैं, next day they have a hangover, headache. Yeah. That is mostly because of that. कि हम लोग dehydration हो जाती है, and पानी ज़्यादा पीते नहीं हैं. If you keep yourself hydrated, so you are less likely to have a headache next day. Okay. Hi all. Welcome to Charu Kumar Show. Thank you so much for supporting us and liking us. आज हमारा पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. And let me tell you, we are discussing the most important part of our body, the CPU of our body, our brain. And I feel delighted to have invited one of the best expertise person in this field, who is a neurosurgeon. उनके बारे में बताने से पहले I would like to tell you that what all you will take away from us from this podcast. आपको ब्रेन के बारे में तो पता चलेगा ही चलेगा, but how to improve your style, your lifestyle, and what are the basic things in life we can incorporate जिससे हम माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम, अल्जाइमर, ब्रेन इंजरीज एंड अल्कोहल, स्मोकिंग, स्लीपिंग और पानी पीना कितना ज़रूरी है, एंड मेनी मोर इन्फॉर्मेशन. Let me tell you, it's a win-win situation today because I'm more excited to ask him lots of questions. So I introduce to you a very decorated neurosurgeon by the name Dr. Harmandeep Singh Barar, who is MS-DNB neurosurgeon and serving in one of the prime institutes of the country, prime hospitals of the country, Fortis. So we really wholeheartedly welcome him to our podcast. Thank you, Dr. H.S. Barar. If I took your big name, and I really thank you for taking out time and being a part of our podcast. Thank you so much. Thanks, Charu. Thanks for inviting me and having me here. And I hope we'll have a good discussion which will be helpful to everyone. I'm sure. As I introduced you as a neurosurgeon, opening the brain and treating what not, tumors, and maybe you will tell us what a neurosurgeon क्या होता है और वो क्या करता है. See, neurosurgeon, as the name implies, neuro. So we deal with everything which has relation to neurons or neurological part of the body. So we deal with brain, we deal with spine, and we have to operate on the brain, we have to operate on the spine. Sounds a tough job, but yes, we have to do it. I think I introduced him as neurosurgeon, but I have to tell you that he's a neuro and spine surgeon. तो ये न्यूरो और स्पाइन के सर्जरीज करते हैं, which I just wonder how complicated it is and how intelligent these people are. तो डॉक्टर बरार, I would like to know that कोविड के बाद खासकर every second house has brain clotting तो बहुत ही कॉमन हो गई है, you know. तो आप बताएंगे कि what is how the brain clot happens and what is the right time कि हमें अलार्म कर लेना, अलार्म होता है कि we should go to the doctor. See, yes, ये कोविड के बाद में it has become a very common situation. जी. After COVID vaccination also, a lot many cases are coming which are being diagnosed as brain strokes. Brain में there are very small vessels, blood vessels, जो हमारे brain को blood supply करती हैं. What the vaccination has done, it causes thickening of the blood. So the blood becomes thick, and फिर वो उन blood vessels में जाके, जो छोटी छोटी vessels हैं उसमें जाके वो जम जाता है एक तरीके से. So just to explain it in a very simple way, तो अगर blood vessel के अंदर blood जम गया and that part of the brain is not being supplied with the blood, so then that part becomes inert or ineffective in a way. Ineffective. And whatever part is involved, whatever the blood vessel is involved, and whatever part it supplies, so the part of the brain, it has certain functions. So those functions will be hampered or harmed, and the patient will have some symptoms. So the most common symptoms are like weakness of one side of the body, maybe upper limb, maybe right
arm or left arm or right leg or left leg, then patient may become unconscious. Patient Okay. may throw seizures. Okay. And in certain patients, they have some speech difficulties, they have some balance difficulties. So that is a time कि हमें डॉक्टर के पास जाना Yes, चाहिए. any patient who experiences any of these symptoms should be rushed to the hospital as soon as possible because in case of stroke, when the blood is thick and it has clogged the vessels and the blood supply is hampered, so we need to open it up as soon as possible. So Okay. initially 3.5 to 4 hours period is there in which we can give certain injections. And after that, maybe up to 12 to 24 hours, we can do some surgery or something else. So that time period is crucial. So the patient needs to be shifted to the hospital ASAP as soon as possible. Okay. तो अगर हम टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो वी कैन हैंडल द सिचुएशन. Yeah, we are in a much better situation to handle the एंड patient. क्या पेशेंट 100% क्योर हो जाता है? Yes, yes. If we arrive in time, if we save the damage to the brain. So the time is brain. So we need to rush the patient to the hospital in whatever, as soon as possible, in whatever earliest time as possible. And whatever intervention is required, whether he requires an injection or some surgery or anything else. So if that can be done within the time frame, then we can definitely save the patient, or we can at least reduce the complications. We can reduce the after effects of the damage. आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ. अब आपने बोला जैसे हेडेक, यू नो, नाउ मे बी देयर पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, उनको भी हेडेक्स हो सकते हैं, उनको भी क्लॉटिंग हो सकती है. एंड एक नॉर्मल इंसान है जिसको हेडेक होता है, एंड वी टेक हेडेक वेरी लाइटली. सो एंड हैज हैपेंड टू माई इन माई फैमिली ऑल्सो कि जस्ट नॉर्मल हेडेक एंड कोई बात नहीं, बिकॉज जैसे हेडेक होती है कि आप रेस्ट कर लो, कुछ कर लो, एंड देन बाय द टाइम वी वेंट टू द डॉक्टर वी हैड ऑलरेडी वेस्टेड 6-7 hours. तो इट बिकेम वेरी सैड स्टेट दैट टाइम. तो कौन सी हेडेक है जिसको हमने सीरियसली लेना है? बिकॉज यू नो. See, headaches, there are a lot many types of headaches which we identify. जी. Most commonly is the tension related headache. हाँ That is जी. most common, especially in day-to-day scenario. जी. We have so much of stress, so much of tensions because of the job or whatever else we are Lifestyle, doing. yeah. Lifestyles. So tension related headache is the most common type of headache. वो कहाँ होती है? सिर पे ही होती है? कोई Yeah, स्पेसिफिक एरिया yeah, में नहीं yeah. हाँ, वो भी Okay. होती है, सब सिर में ही है. हाँ. So tension related headache will be most commonly in the frontal part, in your forehead. Okay. So that is what is the tension related headache. Okay. It will be aggravated because of some tension or job or whatever, maybe working for late hours. And then second most common is the migraine. So migraine will be, it will affect only one half of the head. So if you have a, say, headache only affecting on the right side or on the left side, and which is being aggravated, which is increasing with lights, especially going out in sunlight, or maybe using a mobile phone or iPad or a PC. So that is the migraine part. But we tend to identify all the headaches as migraine. So ideally, the tension headache is the most common. And we need to reduce our stress, we need to reduce our tensions, and maybe have a good sleep for 8 to 10 hours, and then the headache will resolve. But if it is because of the migraine, there are certain other causes also. Some infection in the nose, sinusitis, that may cause headaches. Even your vision problems may cause headaches, so we need to get the vision checkup. Yeah. And in less frequency, but the headaches which are more dangerous, so that may be because of any brain hemorrhages, that may be because of brain tumors. So we need to be vigilant about that. So if there is a headache which is not being recovered by or not being resolved by any medication, and when we say a thunderclap headache, a type of headache which the patient or person has not experienced in his or her life any time, so that is the most dangerous type of headache, because that can be because of bursting of a blood vessels, which we call hemorrhage or aneurysmal bleed. So we have to be very vigilant about that. But we need to rule out the tension headache and yes, migraine also. And nowadays we give some medications. We can give prophylactic medications also, so that the headache does not happen only. Does not happen. So that means कि headache कोई भी हो, we must be vigilant. Yeah. आज के टाइम में we can't हेडेक को बेसिकली हमने छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं, इग्नोर नहीं करना. इग्नोर नहीं करना है, उसको हमने पूरी तरह से इवेलुएट जरूर करवाना है.
and hopefully as I told that most of them are because of the tension. Yeah. So वो अपने आप टाइम के साथ ठीक हो जाता है, बट जो माइनर परसेंटेज है जो which can be dangerous, so we need to be vigilant about We that. need to be vigilant. Wow. That means सिर में दर्द होना is not a very easy thing to say. I mean, Especially it's not. headache associated with say vomiting, with nausea, with again some weakness, which is sudden onset, as I told you, thunderclap headache. जी. So उनके लिए हमें ज़्यादा vigilant रहना है. वो इसका मतलब they have something else going on, and it's not a simple tension headache. Simple. Okay. So, as you just mentioned, कि sleep, like we very casual रहते हैं हम sleep को लेके. So, how much important is sleep? क्या sleep नहीं लोगे तो क्या नुकसान होने वाले हैं? मतलब कई लोग हैं हम तो 4 घंटे हमें तो टाइम ही नहीं मिलता सोने का. तो sleep important, really important? या it's Sleep okay? is really important. Sleep is really important because your whole body relaxes, mind relaxes, the brain has to relax, and most commonly the tension headache, it will be resolved if you get a 6 to 8 hours sleep, regular sleep. It should be a sound sleep. Yeah. एंड आजकल हम क्या करते हैं, हम फोन देखते हैं रात को, जी। सोते समय फोन देखते हैं, सुबह उठ के फोन देखते हैं, yeah. तो आधी टेंशन तो हमारी वहीं से शुरू होती है और वहीं पे खत्म होती है रात को. Yeah. सो इट्स अ बैड आइडिया. हाँ जी. So we have to be very specific, minimum 6 to 8 hours of sleeps, because body requires that much to regenerate, to be able to do the work next day. Yeah. So- So अगर कोई 6 to 8 hours sleep नहीं ले रहा है तो उसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है ब्रेन को लेके? Most commonly, the functioning of the brain will be hampered. जो आपकी इंटेंसिटी या जो आपकी काम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी. जो आपका उस काम पे ध्यान जितना होना चाहिए वो अलर्टनेस कम हो जाएगी. देन बिकॉज ऑफ द टेंशन जो हेडेक रहेगा वो फिर आपको और उस चीज में मुश्किलें करेगा. फिर अगर आपका टेंशन हेडेक है, आप कुछ हाइपरटेंसिव हो, कुछ और मेडिकेशन ले रहे हो, एंड सडनली बिकॉज ऑफ टेंशन, बिकॉज ऑफ लेस स्लीप, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स, सडनली देयर इज अ राइज इन बीपी, देन कोई भी ब्लड की वेसल्स अंदर वो जो है वो रप्चर हो सकती है, which can lead to bleeding. So a sound sleep is a must. Is a must. So what about these medications जो हम नींद की गोलियां खाते हैं नींद लेने के लिए? Do you think that that's actually- good to take it अगर आपको नींद नहीं आती? We don't recommend that We as don't such. recommend, yeah. So ideally you should have a physical activity in daytime, which should I mean you should be say so much it should be so much that you are tired and you get a sound sleep because of that only. Yeah. But then if you are not able to do that, then maybe some prescriptions may be given, but not on a regular basis, and especially for some duration, for a shorter duration only. For a shorter duration. So, as you said that exercise is important. तो एक तो हो गया कि नींद आ जाए. So, exercise brain के लिए भी ज़रूरी है. That's what we've heard कि exercise is very important for your brain functioning. So, how important is exercise? See, any exercise will keep our body also healthy and our mind also healthy. जी. So, अगर mind हमारा healthy रहेगा, हम tension कम लेंगे, हमें sleep अच्छी आएगी, तो हमारी आधे से ज़्यादा problems वहीं ख़त्म हो जाएंगे. जी. But yes, per se अगर हम बोलें brain के लिए कोई अलग से exercises करनी है, तो we can indulge in exercises involving some tricks or maybe solving some puzzles, chess, whatever. Sudoku But or whatever. हाँ. वो हम कर सकते हैं. वो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी अलर्टनेस को अच्छा रखेगी. बट ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हमें कुछ एक दिक्कतें जो आनी ही हैं वो नहीं आएंगी. बट यस, एटलीस्ट हम जो वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा हम उससे तो बेटर हैं. उससे बेटर. वी शुड बी डूइंग दैट. वी शुड बी इंडल्जिंग इन सम एक्सरसाइजेस. Yeah. फिजिकल एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज योर होल बॉडी इज बीइंग यूज्ड इन दैट. Yeah. आपकी पूरी एनर्जी लगती है. Yeah. और जब आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या गेम्स खेलते हो तो उसमें भी ब्रेन माइंड आप यूज करना होता है आपने, तो आप करोगे, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही है. बट यस, वी कैन इंडल्ज इन प्लेइंग चेस, solving some puzzles. Puzzles Yes, also. they are good. So physical exercise as it blood circulation भी होता है, तो it's very good for your brain. It's a good brain food we can say. Alcohol and smoking is like a trend. You know, trend as in youngsters जो मतलब जो adulthood में जाते हैं. But I think nowadays audience people have become very cautious. But क्या smoking and alcohol goes hand in hand कि दोनों एकदम एक जैसे harmful हैं कि I mean some smoking is more injurious or alcohol is more. Both of them are injurious.
both of them? The smoking alone also damages certain, say, it is also, especially for spine also, smoking is more dangerous. For spine also? Yes, and I'll explain it to you. Yeah. And alcohol for brain. Because say somebody is in a habit of drinking alcohol and binge drinking करते हैं या काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो that affects our liver also. So liver has certain enzymes जो liver ने produce करने हैं, वो हमारी bleeding या हमारी bleeding tendency को रोकते हैं. तो अगर वो हम बहुत ज़्यादा बिंज ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो एक तो हमारे एंजाइम्स खराब हुए, जिसकी वजह से आवर बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू हैव अ ब्लीडिंग which will not stop easily. No clotting will be happening. No clotting will happen. Okay. Secondly, उसमें बिल्कुल ब्रेन में जो एट्रोफी हो जाती है जल्दी. What is atrophy? एट्रोफी इज बेसिकली एजिंग ऑफ द ब्रेन. Aging of the brain. सो वो अगर आप रेगुलर बहुत ज़्यादा कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी एज कम्पेयर टू हिज सेम काउंटर पार्ट हु इज़ नॉट इंडल्ज इन ऑल दीज एक्टिविटीज़, तो उसमें ब्रेन एट्रोफी या ब्रेन जो एजिंग है वो ज़्यादा होएगी. उसकी वजह से ब्रेन श्रिंक हो जाता है. तो ब्रेन और जो बोन है नॉर्मली वो दोनों एक साथ जुड़े होते हैं. ब्रेन श्रिंक हो गया तो ब्रेन और बोन के बीच में जगह बन जाती है, विच गिव्स अ पोटेंशियल स्पेस फॉर ब्लीडिंग. सो नाउ द ब्रेन हैज श्रंकन and the liver enzymes are deranged, so more tendency and less ability to clot the blood. So patient with alcohol, with binge alcohol, they may come with the bleeding in the brain, and then we have to operate them, and then we have to see whether the enzymes are okay, whether the clotting time, bleeding time, INR, coagulograms, they are okay. Okay. So alcohol is harmful for the brain part. Now smoking, I said, for spine. Yeah. So smoking affects our collagen in the body. Now spine की जो डिस्क है उसमें भी कोलेजन है. अच्छा. स्पाइन के जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, उसके ऊपर एक लिगामेंट होता है जो उसकी कवरिंग करता है. उसको बेसिकली सेफ्टी मैकेनिज्म है बॉडी का. तो दैट आल्सो हैज सम पार्ट ऑफ कोलेजन. नाउ बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग there is a something called as good collagen and a bad collagen. So the bad collagen it increases. जो गुड वाला है वो पार्ट कम हो जाएगा, तो वो लिगामेंट जो है वो थिकन हो जाता है. तो इट कॉजेज कंप्रेशन ऑफ द नर्व्स या जो स्पाइनल कॉर्ड है. ऑलराइट. और जो आगे जो डिस्क है उसको भी वो सॉर्ट ऑफ एजिंग हो जाएगी उसकी. नॉर्मली देयर इज अ हार्ड डिस्क. अ डिस्क हैज टू पार्ट्स, a hard part outside and a soft part inside. So once this hard part becomes aged, so it sort of cracks open. And जो फिर सॉफ्ट पार्ट है वो पीछे निकल के वो नस को दबा देता है, जिसको हम डिस्क हर्निएशन बोलते हैं. ओके. तो इसलिए स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर स्पाइन, अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर ब्रेन. So we have to be careful for that. Wow, this is something interesting. I mean, of course, brain and spine are connected, but that food, पहली बार I'm listening that smoking is not good for spine. Yes, we definitely. And indirectly not good for brain also because it's connected. Oh, lovely. So, okay, you are a spine surgeon also. तो does spine जो आप surgeries करते हो, is it because किसी का एक्सीडेंट ही होता है कि किसी की लाइफस्टाइल की वजह से भी स्पाइन इंजरीज होती है? मतलब आप सारा दिन बैठे हुए हैं, व्हाटएवर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी, और मे बी स्पाइन इंजरी, स्पाइन ऑपरेशंस हैपन बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल? आजकल लाइफस्टाइल की वजह से भी काफ़ी यंगर पॉपुलेशन आ रही है जो कि हमारी स्पाइन के इश्यूज की वजह से आ रही है. अच्छा. स्पाइन में मेनली हमारे देयर आर वर्टिब्रेस, देन देयर इज डिस्क स्पेस इन बिटवीन द वर्टिब्रेस एंड स्पाइनल कॉर्ड है, और पीछे जाके वो ये हम सबने एक पढ़ा हुआ लेवल है. पे खत्म हो जाती है और फिर नर्व्स आ जाती है. जी जी जी. और जैसा मैंने बताया अभी कि भी उसके ऊपर एक कवरिंग होती है लिगामेंट की, जी जी, व्हिच इज अ सेफ्टी मैकेनिज्म ऑफ द yeah. बॉडी. सो नाउ स्पाइन की जो इश्यूज हैं जो आजकल आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, हम लोग ज़्यादा बैठ के काम कर रहे हैं, हम कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, हमारे नेक पे जोर या प्रेशर पड़ता है. देन हमारे लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं, वी आर नॉट स्टैंडिंग, वी आर नॉट, द फिजिकल एक्टिविटीज हैज गॉन डाउन. सो उस वजह से हम ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो हमारा पोस्चर जो है वो चेंज हो जाता है. We have a tendency to slouch. Yeah. So if you see, if you sit up and if you see and if you feel your spine or somebody else's spine, so you will see that there are various curves along the spine. Yes. तो उसको हम वो जो गर्दन की कर्व है वो अंदर की तरफ होएगी, फिर
जो थॉरेक्स या चेस्ट के पीछे बाहर की तरफ है, लंबर स्पाइन में फिर अंदर की तरफ। कईयों के होते हैं काफी तो वो विजिबल। दैट कर्व हैज टू बी मेंटेन्ड। अच्छा, So whenever there is a change in the curve, so it means there is some problem in the spine. ओ So that we can see from the lateral, say if somebody is standing and I'm seeing in from the side, आप देख लोगे। so हाँ, हम उसकी curve देख लेंगे. हाँ, Even there is something else also which we see from the back part also, which एक तो कर्व ये होगी कि नेक की आगे है, पीछे जाएगी चेस्ट की, एंड देन फिर लंबर स्पाइन में आगे आएगी। एक होता है कि सेंटर में अगर हम देखें तो स्पाइन हैज टू बी स्ट्रेट, बट इन सम केसेस देयर इज सम कर्व टू द लेफ्ट और टू द राइट आल्सो। वी कॉल इट एज स्कोलियोसिस। दैट इज मोस्ट कॉमन इन द एडोलेसेंट एज। बच्चों में ज़्यादा होती है, वो शुरू होते होते फिर टिल द टाइम ऑफ हिज मैच्योरेशन 15-16 ईयर्स तक वो बढ़ जाती है। ओके, तो वो भी एक चीज़ है, उसको हम फिर कवर करता हूँ मैं। बट पहले ये कि स्पाइन में जो हम लाइफस्टाइल से जो हम बात कर रहे थे, तो उसमें ये आ जाता है कि ये वो कर्व हमारी स्ट्रेट हो जाती है ऑलमोस्ट, क्योंकि हम गर्दन में हम काम कर रहे हैं, हम नीचे नेक पे प्रेशर पड़ रहा है जब भी हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हमारा बैठना सही नहीं, हम स्लाउच कर गए, इफ वी आर वाचिंग टीवी और समथिंग तब भी हम स्लाउच करके जी बैठते जी हैं। जी जी जी। तो उस वजह से हमारा जो स्पाइनल मसल्स होते हैं उस पर प्रेशर पड़ता है, वो मसल्स स्पाज्म में आ जाती हैं, वो अकड़ जाती हैं, अकड़ने की वजह से वो कर्व स्ट्रेट हो जाती है। देन सर्टन ज़्यादा देर तक ऐसे ही रहोगे या कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी, पेन स्टार्ट हो जाएगा। उसमें होता क्या कि स्पाज्म की वजह से वो नर्व्स जो है, नर्व रूट्स जो हैं, उस पर फिर थोड़ा बहुत इम्पिंजमेंट होता है, पेन होता है। उस पेन को रोकने के लिए फिर हम कुछ पोजीशन अपनी ऐसी बना लेते हैं, या एंड देन इट्स That सॉर्ट ऑफ अ साइकिल, विशियस Yeah. साइकिल बन जाता है कि वो बढ़ता जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट इज थ्रू सम एक्सरसाइजेस या सर्जरी ही होती नो है? नो नो, सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, In most of the cases you do not require surgery. Most of the cases आप exercises, आप अपना अच्छा posture, अच्छा पोस्चर। आप अच्छी डाइट, हाँ, उन सब चीज़ों से, या समटाइम्स वी रिक्वायर हॉट फॉर्मेटेशन, कोई जेल एप्लीकेशन, बिकॉज जो स्पाज्म आ गया मसल्स को तो उसको हमने रिलीव करना है, रिलीव करना तो उसके लिए हम हॉट फॉर्मेटेशन एडवाइस करते हैं, जेल एडवाइस करते हैं, मे बी सम पेन किलर्स फॉर सम टाइम। मोस्ट ऑफ द केसेस वी डू नॉट रिक्वायर सर्जरी। ओके, एक्सरसाइजेस में क्या आ जाता है कि जो हमारी मसल्स हैं वो हमारी मतलब उनको हमने स्ट्रेंथन करना है, हाँ जी, ताकि हम जितना भी देर काम करें तो वो हमारा उसको सपोर्ट करें। तो उसके लिए गर्दन के लिए, नेक के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं, फिर बैक के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं, दैट वी हैव टू डू। that we have to do. So if your spine is not doing good, so does it affect the brain because they're connected? No. Yeah, brain and spine are connected. Mostly it is, if the brain is not doing good, then the spine will be gets affected. But Because it is, say, the brain is the main part, yeah, and then the spinal cord, it comes down, and the nerves which are supplying the whole body. yeah, So it is not, I mean, the other way around will be, it is possible, but in very less cases. So mostly it is the brain which is being affected, yeah. or the junction at which the brain and spine are connected. And then the downwards, the lumbar and the other spine areas. Okay. So basically, spine is the CPU, the main controller of our whole body. You just mentioned healthy diet. So, as a doctor, from a doctor's mouth, what is a healthy diet? And also tell us that veg and non-veg. As in, is vegetarians किसी चीज़ पे lack करते हैं? As in, if they're and is it fine? And what is it? Because a lot of myths की eggs बहुत ज़रूरी हैं. Vegetarians they are finding नहीं, lack ऐसा of नहीं it. है। हम So- healthy diet basically it should consist, we should have enough of proteins, enough of carbs, and enough of fats. अच्छा. Normally, we require around 2000 to 2500, maybe 3000 kilocalories of energy per day, depending on the type of work we are doing. तो उसमें कुछ एक पार्ट होता है कि इतने परसेंट प्रोटीन्स होना चाहिए, इतने परसेंट फैट्स एंड इतने परसेंट कार्ब्स। मोस्टली कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन्स एंड फैट्स कम है। तो डाइट जो भी हम नॉर्मल डाइट लेते हैं, इंडियन डाइट, वो गुड इनफ होती है, ऐसा कुछ उसमें है नहीं कोई प्रॉब्लम। Okay. बट जो प्रोटीन्स पार्ट है उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है कि वी आर नॉट टेकिंग, से समबडी हु इज अ वेजिटेरियन, तो अगर वेजिटेरियन हैं तो उसमें प्रोटीन्स के लिए देन दे शुड ऐड एटलीस्ट सोया और मे बी सम पल्सेस, देन जो वाइट चना, ये सब खा सकते हैं, प्लस पनीर है, मिल्क है। So that's like उससे आपको protein is a brain. It's good for brain. I mean, इट्स गुड फॉर द मसल्स पर से। okay. तो हमारा जो स्पाइन के लिए हम सोच रहे थे कि एक्सरसाइजेस करनी है, तो उसमें मसल्स के लिए यूज होएगा। देन जो अमाइनो एसिड्स वगैरह यूज होते हैं वो रीजनरेशन ब्रेन में या स्पाइन में दोनों जगह काम करेंगे।
प्लस आपको जो बेसिक एनर्जी चाहिए दिन के लिए, जो काम करने के लिए, उतनी तो कंप्लीट करनी है। उतनी कंप्लीट करनी है। सो कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हार्ड एंड कि फास्ट कुछ नहीं है कि हमने यही खाना है या ये नहीं हाँ, खाना है। राइट राइट राइट। नॉन वेज हैं तो वो अपना उस हिसाब से उनका प्रोटीन पूरा हो जाता है, बट वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन को कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो दे हैव टू से ऐड ऑन समथिंग एक्स्ट्रा। Extra, all right. So now, as you said, कि जो brain controls everything. Now, there's a very common problem, which is dementia, which is Parkinson. Parkinson, I don't know how much common it is, but of course, these are very basic brain problems which we hear. Dementia तो बहुत ही ज़्यादा common है. So it's like forgetfulness. If I say in a layman, language. So can dementia be prevented, or can it be you can't have it? Now, what am I right in saying that you can't have it, or if you will have it and you can prevent it? You can, I mean, both ways it's a bit tricky question. जी. तो डिमेंशिया को हम अगर बोलें कि वी कैन प्रिवेंट इट, सो दैट इज आल्सो आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। और अगर हम बोलें कि उसको वी कैन नॉट हैव इट, दैट आल्सो इज नॉट पॉसिबल। मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ डिमेंशिया, पार्किंसंस, दे विल हैव सम जेनेटिक फैक्टर्स इंक्लूडेड, और एज के साथ में कुछ कुछ पार्ट आना ही है हर चीज में। So dementia is genetic also? some types of dementia will be Sometimes. genetic. Okay. So वो जो चीज़ें हैं वो एज के साथ में, वो टाइम के साथ में आनी ही हैं। हम उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, थोड़ा उसकी से स्पीड को स्लो कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि भी पहले उसको आइडेंटिफाई करना है हमने इजीली, अर्ली, जितना अर्ली हम आइडेंटिफाई कर सके, फिर हम उसको कैसे कम करना है या क्या उसको हम रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं, दैट विल हैव टू डिस्कस विद द न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन के भी हमने बैठ के इसको कैसे करना है। तो जैसे हम लोग एज इन जो लोगों के घर में एडल्ट्स है, एजेड लोग हैं, और उनको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि ये बहुत फॉरगेटफुलनेस हो रहा है, तो उनको चलो दे माइट नॉट टेक देम टू डॉक्टर एवरी टाइम बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि फॉरगेटफुलनेस है, तो उनको कुछ क्या एडवाइस दे सकते हैं वो कि आप ऐसे ऐसे करो तो यू कैन delay it or improve it? I mean, what? वही again basically we have to get a healthy diet, antioxidants वगैरह वो And सब stress free. स्ट्रेस फ्री रखना पड़ेगा। मेडिकेशंस जो होती हैं, जैसे डायबिटिक पर्सन विल हैव मोर डैमेज टू द नर्व्स बिकॉज ऑफ द डायबिटीज आल्सो। Okay. सो उनको हाथों पैरों में भी वीकनेस, नमनेस ज़्यादा आती है, जल्दी आती है, टिंगलिंग सेंसेशन रहती है। Okay. अगेन विद द ब्रेन पार्ट, देन स्पाइनल कॉर्ड में भी डैमेज होता है। Damage हो जाता है. सो जो भी हमारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है या कुछ और कोई बीमारी है, तो हमें वो स्ट्रिक्टली उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसकी प्रॉपरली, जो भी जहाँ से हम मेडिकेशन ले रहे हैं, वी शुड हैव अ रेगुलर फॉलो अप, एंड इट शुड बी विद इन स्ट्रिक्ट कंट्रोल, विद इन स्ट्रिक्ट मॉनिटर, बिकॉज वी हैव अ टेंडेंसी, हम लोग जैसे एक बार दिखाया, मेडिसिन दी, देन वी कीप सिटिंग आइडल फॉर 6 months, एंड फिर वो बोलेंगे नहीं, एक साल निकल जाए, 6 महीने निकल जाए, तब दोबारा दिखाएंगे। जी जी। इनफैक्ट आज ही एक पेशेंट का 42-year-old पेशेंट, he just sent me his reports, उसमें HbA1c जो एक डायबिटीज़ के लिए हम लोग चेक करते हैं, that was 10.5, ideally it should be around 6, less than 6. Okay. तो फिर अगेन ही कॉल्ड मी, तो मैंने बोला कि भाई आपको शुगर है? नहीं, मुझे तो कभी शुगर है ही नहीं, मैंने कभी चेक नहीं करवाई, और जब भी चेक करवाई तो वो नॉर्मली 150-100 तक आती थी। तो वो जो रैंडम शुगर हम चेक करते हैं, वो दैट कैन बी मिसलीडिंग समटाइम्स। अच्छा। अभी आज मान लो मैंने डिनर 6 बजे कर लिया, 7 बजे कर लिया, उसके बाद कुछ खाया नहीं, सुबह मैंने अपनी शुगर चेक की अराउंड 7 o'clock और 8 o'clock, तो मेरा 12 घंटे का टाइम गैप आ गया जिसमें मैंने कुछ नहीं लिया, तो दैट शुगर विल कम नॉर्मल और लेस लोअर। और अगर मैंने वही रात को 10 बजे कुछ खाया है एंड सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ गया, 4 बजे 5 बजे उठ के मैंने अपना ब्लड शुगर चेक कर लिया, सो दैट माइट बी अ बिट हायर ऑन टुवर्ड्स द हायर साइड। सो HbA1c जो है, जो हीमोग्लोबिन में हमारी शुगर होती है, वो एग्जैक्ट है, वो आपको आपके पिछले 2-3 महीने के, आइडली हम 3 months का विंडो लेके चलते हैं, वो 3 months का आपको शुगर कंट्रोल बता देती है। और अगर वो आपकी ज़्यादा है, सो उस वजह से मैं स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग बोल रहा हूँ कि वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट, वी हैव टू डू अ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ आवर ब्लड शुगर लेवल्स, हाइपरटेंशन। अगेन बीपी में भी ये होता है कि हमने जिस समय चेक किया, सुबह चेक किया, रिलैक्स थे, या तो दैट कैन वेरी। सो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन कीपिंग आवर RBS, ब्लड शुगर्स, कीपिंग आवर BP विद इन द रेंजेस।
ओके और उसी वजह से और बाकी चीज़ें जो हम बात कर रहे थे कि भी स्ट्रेस फ्री लाइफ रखनी है, हमने टेंशन नहीं किसी को वो इतनी ज़्यादा करनी कि जो एजड हैं वो उस चीज़ को लेके ही टेंशन उनको में टेंशन में रहे एंड देन समथिंग हैपन देन ही हैज अ ही इज ऑलरेडी हैविंग फॉरगेटफुलनेस और साथ में और चीज़ें भी आ जाएं। सो मतलब स्ट्रेस्ड एग्रवेट्स डिमेंशिया। एंड फॉरगेटफुलनेस सिर्फ जो कई बार हम डिमेंशिया मान लेते हैं, that might be a symptom of something else also. Some maybe even brain tumors patient they come with to us with forgetfulness. वो forgetfulness भी नहीं होती, कई बार होता क्या है कि वो ब्रेन का ऐसा पार्ट डैमेज हो रहा है जो कि हमें जो हमें नाम लेने में हेल्प करनी है जिसने, तो sometimes the patient is doing okay, उनको पता है कि मैंने ये पेंसिल है तो मैंने पेंसिल ही बोलनी है, बट वो क्योंकि वहाँ पे ब्रेन में उस पार्ट में डैमेज है, उस पार्ट में कोई ट्यूमर है, तो ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक द नेम, वो पेंसिल नहीं बोल पा रहे हैं, वो उसको कुछ और बोल रहे हैं, पेन बोल रहे हैं या समथिंग एक्स्ट्रा, या ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक द वर्ड। तो हमें लगता है कि भी इनको डिमेंशिया है या फॉरगेटफुलनेस है जी। तो हमें वो दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो एक न्यूरोलॉजिस्ट ऑब्लिक न्यूरोसर्जन को दिखा के इट शुड बी प्रॉपर वर्कअप शुड बी डन, एंड उसमें फिर हमें रूल आउट करना है कि भी इसका कारण क्या है और फिर हम उसको कैसे मैनेज करें। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट अगर आपको कोई वो हम खुद सेल्फ जो डॉक्टर बनते हैं, आई थिंक टुडे वी शुड नॉट डू दैट बिकॉज़ आजकल वी शुड नो समथिंग अबाउट, आई मीन कोई बीमारी है तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, बट हम उस चीज को ना बन जाएं, हम उसको अपने आप पे उसी समय ऐसे इम्प्लाई ना कर लें कि भी मैंने ये इसको ट्रीट करना है या ये होना है। हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा तो जो हमें समझाएगा भी वो हम समझ नहीं पाएंगे उतना, या वो जिस तरीके से समझाना चाहता है, जो ट्रीटमेंट या जो भी व्हाटएवर पाथ वो फॉलो करना चाहते हैं, वो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो पता होना चाहिए, बट उस चीज को हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भी हमें सब कुछ ही पता है उस चीज को। Dr. Tumors, like we know, our doctor is a very, you're an expert in opening the brain and treating tumors and all kinds of, I probably कई worms भी होते हैं which travel the brain, which is of course वो common तो बच्चों में भी हो जाता है, बड़ों में भी हो जाता है, it is not age specific. तो have you had cases where there have been worms in the brain? और क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमें पता चले, जैसे कहते हैं कैबेज नहीं खानी चाहिए ना कि उसमें होता है, इज इट ओनली द कैबेज वी शुड अवॉइड और आर देयर अदर वेज दैट वी हैव वर्म्स इन द बॉडी? वी हैव न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, दैट इज अ मेडिकल टर्म फॉर द sort of brain infection because of certain types of worms, okay. So and some foods also जो हमें ये प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कैबेज आपने बताया, कुछ एक एरियाज में जो हिली एरियाज हैं, हिमाचल JNK का कुछ पार्ट जहाँ पे हम ये शीप वगैरह को हैंडल करते हैं, तो उससे भी कुछ इन्फेक्शन होती है, उनसे भी ब्रेन में इट इज़ नॉट पर से कि भी हमें वो वर्म ऐसे चलता हुआ दिखेगा, वैसा नहीं है, वो ब्रेन में इन्फेक्शन होती है, ब्रेन में कुछ पार्ट में जाके इन्फेक्शन होके वहाँ पे वो एक छोटा सा हमें बिल्कुल 5 mm 1 सेंटीमीटर इतना सा एक गोल सा कुछ वो दिखेगा CT स्कैन या MRI में जी। फिर वो कैल्सीफाइड हो जाता है विद एज, तो कई बार तो वो कुछ नहीं करेगा, ब्रेन में कहीं ऐसी जगह पड़ा है जो भी इन्फेक्शन हुई है कि वो कैल्सीफाइड हो गई एंड वो ब्रेन को कुछ डैमेज नहीं कर रही, बट समटाइम्स पेशेंट कम विद हिस्ट्री ऑफ सीजर्स, मोस्ट कॉमनली ऐसे इन्फेक्शन में दौरा पड़ता है, सीजर आता है, उसकी वजह से पेशेंट हमारे पास आता है, फिर हम MRI या CT स्कैन करते हैं, तब हमें पता चलता है। तो हमें वर्म्स और कैसे, एक तो आपने कहा वो शीप हिली एरियाज में एनिमल कंजम्पशन हो गई, इज दैट डर्टी फूड हैंड से हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं होता? डेफिनेटली हमें फूड या जो भी हमें खाना है तो वो क्लीन और वो तो होना ही चाहिए, अगर ये इन्फेक्शन नहीं होगी तो और इन्फेक्शन हो जाएगी। बट यस, ये जो ब्रेन की इन्फेक्शन इज पार्ट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन होती, कई बार हम खाते हैं वो अब्जॉर्ब तो हमारे पेट से ही होना है, तो वहां से जाएगा, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करेगा, देन इट माइट ट्रैवल थ्रू द ब्लड, इट माइट ट्रैवल टू इम्यूनिटी इज आल्सो वीक कि वो हम वर्म्स को नहीं मार पाया बॉडी, दैट इज आल्सो इम्यूनिटी इज वीक एंड और जो हमने कहीं से खाना पीना खाया, जो बनाया या उसको जो खाना बना रहा था कहीं से हमने होटल से ढाबा से कुछ खाया, तो उनकी सफाई कैसी थी वहाँ पे, उनकी क्लीनिनेस कैसी थी वहाँ पे, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। हीट मार देती है? यस डेफिनेटली, फूड को ढंग से हमने कुक किया है, पकाया है, तो उस चीज़ों से तो ठीक। तो कैबेज में अगर हम हीट कर लेते हैं तो डज द टेस्ट हम ढंग से बनाते हैं तो फिर तो व्हाट इज देयर सम टेंपरेचर, आई मीन जिसमें कुकिंग होती है? नथिंग लाइक दैट, बट नॉर्मल जो हम हीट कर जब भी हम कुक करते हैं तो दैट नॉर्मली
उसी वजह से होता है कि भी उसमें सब चीज़ें ऐसी जो भी इन्फेक्शन है या कुछ है, बट उससे प्रायर हमें जो उसको वॉश करना है, पानी से धोना है, वो दैट इज So we should avoid eating raw. या We should avoid eating raw. We can have it steamed or cooked. yeah. Okay. So just tell me, after मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसा सा कोई केस आपने ब्रेन खोला और कुछ ऐसा सा जो दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी मिस्टीरियस वर्ल्ड व्हेन यू ओपन अ ब्रेन. ब्रेन एक ऐसी चीज़ है, ब्रेन सर्जरी भी ऐसी चीज़ है जो ऑल द न्यूरोसर्जन्स विल एग्री दैट हम लोग कई बार बहुत कोई एक सर्जरी की एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब, Yeah. बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट आई मीन 100% फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन के कैसे कैसे है. हाँ. तो एंड नेक्स्ट डे वी सी द पेशेंट एंड वी आर शॉक्ड के पेशेंट, सर्जरी तो बहुत अच्छी हुई थी बट पेशेंट उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा. एंड किसी किसी दिन होता है कि अच्छा हमने सर्जरी कर दी बट We are unsure. अंदर आपको पता होता है कि यार उतना अच्छा नहीं हुआ था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या मैं चाहता हूँ. एंड नेक्स्ट डे पेशेंट इज डूइंग वेरी वेल. पेशेंट मजे से बैठ के वो आपको हेलो हाई करेंगे, विश करेंगे एंड यू आर शॉक्ड कि यार ये क्या हो गया, वो उस दिन तो ऐसे हो गया था, ये कैसे हो गया. Okay. सो यस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कई बार तो कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पता होंगी, बिकॉज हम से कुछ भी पार्ट है, फिंगर है, अब किसी हाथ में या किसी चीज़ में कोई यहाँ पे चोट लगी या कुछ भी पार्ट हुआ तो इसको मैं देख सकता हूँ, इसको मैं एक्स्ट्रा वो कर सकता हूँ कि क्लीन कर सकता हूँ या काट सकता हूँ. ब्रेन में आई कैन नॉट डू एक्स्ट्रा एनीथिंग. अगर ब्रेन ट्यूमर है तो मुझे वो ब्रेन ट्यूमर ही निकालना है. मैं नॉर्मल ब्रेन उसके साथ में डैमेज नहीं कर सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ. तो उन चीज़ों के लिए मुझे ध्यान रखना पड़ेगा. सर्जरीज में यस बहुत बार ऐसा होता है कि आप सिंपल एक जो ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट है उसमें बहुत सारा अडीमा आ गया, सोजन आ गई, प्रेशर बढ़ गया अंदर, तो हमने उनको डिकम्प्रेशन करना है, हमने सिर्फ बोन सर्जरी करनी है, वी हैव टू रिमूव द बोन और ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए जगह मिलनी चाहिए. एंड जब आप देखते हो अंदर ब्लीडिंग भी हो रखी होती है अंदर की, बिकॉज ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि इवॉल्विंग है प्रोसेस. हमने सीटी स्कैन किया, कोई पेशेंट मेरे पास आया, मैंने सीटी स्कैन किया उसको सुबह 10 बजे, सर्जरी के लिए मान लो 12 या 1 बजे लेके गया, तो 3 घंटे का गैप पड़ गया. तो 3 घंटे में ब्रेन में क्या हो रहा है मैंने वो उस समय तो सीटी स्कैन कुछ करके नहीं देखा है. पेशेंट इज ऑलरेडी सिक. सो जब आप फिर सर्जरी करने जाते हो तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि भी जो आप चीज़ सोच के जा रहे हो वो तो है ही है, बट देन कुछ और भी हो सकता है, तो आपको वो तो रखना पड़ेगा. और आपको बैक ऑफ द माइंड आपको थोड़ा सा अपना माइंड खोल के जाना पड़ता है कि भाई ये चीज़ है तो इसको मैंने ऐसे करना, बट देन यू माइट एंड अप डूइंग दिस थिंग्स बिकॉज ऑफ सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस या जो आपको खोल के पता चलती जो आपको है सर्जरी के दौरान कुछ पता चलता है. या सो यस, आई थिंक इट्स अगेन एज यू सेड दैट यू कांट ओपन इट एंड सी ना, वो तो अब तब खोलोगे और जब तब आप सर्जरी करोगे तब करोगे, एंड देन उसमें भी इट इज वी हैव टू डू एज लेस डैमेज or handling of the brain as possible. I have very major respect for neurosurgeons like you because we had a very major case in our family. और for a layman जब पता चलता है कि brain खोलनी है, skull निकालना है, so it's like oh my god, because you know we are not used to, for us brain तो छेड़नी ही नहीं चाहिए. So I think thanks to your expertise, and I hope and wish कि we have such more talented doctors in our country, because big tumors you have taken out and the patient is doing really well, you know, we opened the brain and you've stitched it back. So you must have, obviously you are handling these accidental cases also. तो accident तो एक तो हो गया जो road accident है जिसमें पता है कि we have to go to a doctor. Now there are cases जब हम सुनते हैं जैसे घर में गिर गया कोई, washroom में गिर गए and they had head injury. People thought कि ऐसे हुआ है, उनको लिटाया and he's no more maybe, and at times doctor says कि he's brain dead, you know. तो जब कोई गिरता है उसके सिर के बाहर गिरता है तो is it very important to take him to a doctor immediately, और how to diagnose कि क्या करना है? Actually head injuries में क्या रहता है, एक तो yes हमने जैसे आपने बोला कि भी road traffic accidents है जी. So the RTAs or the road traffic accidents are the most common cause of head injury, especially in Indian scenario. Yeah. उसमें एक फैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो हम जो टोटल ग्लोबल हेड इंजरी की वजह से डेथ्स होती हैं उसमें 10% हम इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग टू दैट, ऑल्दो वी हैव जस्ट 1% ऑफ द ग्लोबल नंबर ऑफ व्हीकल्स. जितने
वर्ल्ड वाइड व्हीकल्स हैं उसका सिर्फ 1% हमारे पास है, लेकिन एक्सीडेंट बट एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ द हेड इंजरी वो 10% हम मतलब इंडिया में होती है, सच लार्ज इज द नंबर। या अभी इसमें क्या होता है कि कुछ भी चोट लगी ब्रेन में हम उसको हेड इंजरी मानते हैं, इवन अ फॉल एट होम, या fall at home especially in a elderly patient who are on medication, जी क्योंकि उनको बीपी की दवाई चल रही होगी, उनको कोई शुगर की मेडिकेशन चल रही होगी, कई बार कोई हार्ट के पेशेंट्स होते हैं या हार्ट की सर्जरी हुई होती है तो उनको ब्लड थिनर्स चलते हैं। जी तो वो ब्लड थिनर्स जब चल रहे होते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एज के साथ में ब्रेन श्रंक हो जाता है, तो ब्रेन और बोन के बीच में स्पेस आ जाती है, हाँ। So any trivial trauma might include even a sudden jerk to the body. So somebody say he is sleeping and he has some experience और एकदम वो उठ के बैठ गए, तो तब भी आप अगर उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं तो जैसे वी आर कुकिंग समथिंग इन अ प्रेशर कुकर और सम यूटेंसिल विच इज कवर्ड, जी वो तो उसके अंदर है, ऊपर से यूटेंसिल इज अ हार्ड थिंग, सो इफ यू शेक द यूटेंसिल तो अंदर जो भी चीज है वो तो सारी हिल के मिल जाएगी। जी 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 सेम थिंग हैपेंस विद द ब्रेन। सो ब्रेन इज अ वेरी सॉफ्ट पार्ट, स्कल जो बोन है वो हार्ड है, अब उसके बीच में जब वो पोटेंशियल स्पेस मिल गया तो स्कल बोन ने तो कुछ नहीं होना, ब्रेन हिलेगा, तो देयर आर स्मॉल बहुत थिन सी वेसल्स होती हैं जो कि उसको कनेक्ट करती हैं, ओके तो वो टूट जाती हैं। एंड देन somebody who is on blood thinners, कोई हार्ट की वजह से ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, कोई बीपी की वजह से किसी को ब्लड थिनर्स स्टार्ट किए गए हैं, तो उनमें वो धीरे धीरे ब्लड इकट्ठा होता रहता है। तो हमने जब आज कोई कुछ इंजरी हुई, कोई चोट लगी, वो पेशेंट इज डूइंग ओके, नॉर्मली हम लोग कुछ नहीं करते कि ठीक है गिर गए थे बट अभी ठीक है तो हम कुछ नहीं करेंगे, एंड देन सडनली आफ्टर से 10 days हम जो गिरे होते हैं हमको होता है कि वीकनेस आ रही है, इज नॉट एबल टू मूव हिज राइट आर्म और राइट लेग, तो फिर तब हम जाते हैं, तब हम ठीक है वो सिम्टम जब आए तभी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, बट यस अगर कोई भी फॉल हो कुछ चीज़ हो तो एक बार दिखा लेना चाहिए, उससे हमें थोड़ा सा आइडिया पता चल जाता है। अगर नहीं है और ये हमने 10 दिन बाद या 15 दिन बाद भी देखा तो उसमें वो ब्लीडिंग आ गई, सीटी स्कैन में ब्लीडिंग आ गई, सो दीज आर कॉमन थिंग्स टू हैपन, ये जो ब्लीड्स होते हैं, एंड स्पेशली इन ओल्ड एज, एंड दीज आर क्यूरेबल, उसमें क्यूरेबल और उससे पेशेंट को अच्छा बेनिफिट भी मिलता है। All right. Because this is a bleeding which is normally it happens outside the brain, as I explained, between the brain and the bone, and उसको निकाल देने से ही उसमें फर्क पड़ जाता है, and patient does well after that. Okay, so that means we have to be very vigilant. हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वही आपकी बात की झटके से कोई उठ रहा है तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। Because कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं ओल्ड एज में जो ऐसे ब्लीडिंग इकट्ठी हुई होती है, फिर उनसे जब हिस्ट्री वाइज मैं पूछता हूँ या कोई भी हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो उस चीज़ को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि जी मैं तो गिरा ही नहीं, मैं तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैं स्पेसिफिकली पूछता हूँ कि भाई आपको कोई ऐसा झटका लगा हो, कुछ किया हो, देन मे बी सडनली वो रियलाइज करते हैं कि हाँ जी ऐसे हुआ था, बट उस चीज़ को बिकॉज दैट इज अ ट्रिवियल ट्रॉमा, सो वी डोंट रिकॉग्नाइज इट एज अ ट्रॉमा, हम उस चीज़ को मानते ही नहीं है कि भी वो कोई प्रॉब्लम थी। Okay. So as you were hearing from doctor that you have to be very careful and don't take your body that non-seriously, you know, we must not. So there's a term called neuroplasticity. As you said, one should keep learning, you know, brain keeps on regenerating. So what is neuroplasticity and why is it so significant? जो भी हमारे ब्रेन में कोई डैमेज हुआ बिकॉज ऑफ से व्हाटएवर बी द कॉज, कोई ट्यूमर ऑपरेट हुआ था, कोई ब्लीड ऑपरेट हुआ था, या स्पेशली इन स्ट्रोक पेशेंट्स, जी स्ट्रोक पेशेंट्स में कोई ब्लड सप्लाई जो जा रही थी, ब्लड वेसल छोटी सी भी वो ब्लॉक हो गई तो ब्लड नहीं जा रहा, तो उसको ट्रीट कर दिया हमने, या हमने वो जो मैंने विंडो पीरियड बताया था कि भी उसमें 3.5 to 4 hours या बाद वाला भी वो निकल गया, हमने स्टिल वी स्टार्ट द पेशेंट्स ऑन ब्लड थिनर्स, जी ताकि जो जितना भी ब्लड है वो तो जाए, फिर बॉडी ने रीजनरेट करना है, तो वो नई ब्लड वेसल्स बनाती है, ब्रेन बनाती है नई ब्लड वेसल्स बनेगी, तो वो कहीं ना कहीं से, उनको हम कोलेटरल्स बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से उस चीज को ब्लड सप्लाई करने की कोशिश करेगा ब्रेन, क्योंकि उसने अपने आप को तो बचाना ही है। तो यस, न्यूरो प्लास्टिसिटी इट हैपन्स, वो उसको जितना भी रीजनरेट कर सकती है करता है ब्रेन। 100% यहाँ बहुत ज्यादा डैमेज हो गया उसमें हो जाएगा ऐसा नहीं है। यस, माइनर केसेस जहाँ पे थोड़ी सी डैमेज है,
छोटी ब्लड वेसल्स थी जो इन्वॉल्व थी, वहाँ पे अच्छे से कोलेट्रल्स बन गए हैं जो उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें इट रीजनरेट्स, इट रीजन तो इट अदरवाइज हेल्प्स. बट अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है, हमारा जैसे ब्रेन के दो पार्ट हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर. सो लेफ्ट हेमिस्फीयर या जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, दैट इज more important for us because it is the dominant part. the left. So that is it's controlling the opposite part, है Opposite ना? side. Left controls the right side of the body and right controls the left side of the body. So in most of the patients or in most of the persons who are right-handed में almost 99 to 97% तक हमारा left brain dominant होएगा. जो लेफ्ट हैंडेड है उसमें भी ऑलमोस्ट 92 to 95% लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होएगा. अच्छा. सो बेसिकली इट इज द लेफ्ट ब्रेन विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि वो डोमिनेंट पार्ट है. अच्छा. तो उसमें जो भी डैमेज होएगा उसमें रीजनरेशन उतना अच्छा नहीं होएगा, बिकॉज वो ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है. वो आपकी स्पीच, आपकी मेमोरी, बहुत सारी चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहा है. राइट साइड ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट साइड में डैमेज होएगा तो राइट साइड डैमेज भी हो जाएगी. तो राइट हैंडेड हो तो आपको वैसे मुश्किल लगेगी. राइट साइड ऑफ द ब्रेन इफ इट गेट्स डैमेज तो उसमें रीजनरेशन उसमें भी उतनी होगी, बट क्योंकि वो इतनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहा तो आपको ये लगता है कि भी हम ज़्यादा रिकवरी कर रहे हैं. तो दैट्स अ गुड थिंग ऑल्सो. एंड यस, न्यूरोप्लास्टिसिटी या रिकवरी या रीजनरेशन इट हैपन्स अप टू सर्टेन एक्सटेंट, बट हर केस में होएगा और 100% होएगा ऐसा नहीं है. स्ट्रोक पेशेंट्स में भी जिनमें हम बोलते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आती है. पहले वीकनेस थी राइट साइड की, वो राइट आर्म को नहीं मूव कर पा रहे, लेफ्ट या राइट लेग को नहीं मूव कर पा रहे. धीरे धीरे विद टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है. बट उसमें ग्रॉस मूवमेंट माने तो हाथ उठाना, लेग को फोल्ड करना, उठाना, वो शुरू हो जाता है. बट जो फाइनर मूवमेंट होती हैं, पिंसर मूवमेंट्स के फिंगर्स की, वो सब नहीं आ पाते. तो वो रीजनरेशन या न्यूरोप्लास्टिसिटी वही अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट हेल्प्स, बट 100% ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होता. यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स. नाउ एज यू सेड दैट थिकनिंग ऑफ ब्लड लीड्स टू ब्लड क्लॉटिंग एंड ऑल. वाटर, जो अगेन हमारे इंडिया में बहुत उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और बाहर वाटर इज एक्सपेंसिव. इंडिया में तो वी डोंट वैल्यू वाटर दैट मच. हाउ मच इम्पोर्टेंट इज वाटर फॉर द ब्रेन? बहुत ज़्यादा हमें हाइड्रेशन रखनी है अपनी हमेशा, स्पेशली गर्मियों में, स्पेशली रेनी सीजन में. अच्छा, रेनी सीजन उसमें हम लोग ज़्यादा वो करते नहीं है, पानी नहीं पियेंगे. सर्दियों में हम ज़्यादा पानी नहीं पियेंगे जी. सर्दियों में तो नहीं पिया जाता है. उसमें डिहाइड्रेशन होएगी बॉडी की. दैट मे ऑल्सो लीड टू हेडेक ऑल्सो. उसका भी एक पार्ट होता है. जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन की देयर इज अ कवरिंग विच वी कॉल एज ड्यूरा. ब्रेन एज सच हमारा कोई ब्रेन का पार्ट जो है मेन, वो पेन सेंसिटिव नहीं होता है. जो ड्यूरा है वो पेन सेंसिटिव है. वो ब्रेन की कवरिंग है. ब्रेन है, उसके ऊपर ड्यूरा है, एंड देन बोन. जी. तो जैसे ही हमारे डिहाइड्रेशन होगी या हमने पानी पूरा नहीं पिया, तो ब्रेन थोड़ा सा श्रिंक होएगा. वो ड्यूरा पे स्ट्रेच करेगा. ड्यूरा पे स्ट्रेच होएगा तो पेन होएगा. तो जो मोस्ट कॉमनली जो हम say somebody who is doing some binge drinking, alcohol बहुत ज़्यादा लेते हैं, next day they have a hangover, headache. So that is mostly because of that, कि हम लोग dehydration हो जाती है, and पानी ज़्यादा पीते नहीं है. If you keep yourself hydrated, so you are less likely to have a headache next day. दूसरी चीज़ है जो मैंने जैसे रेनी सीजन या बेसिकली जो ह्यूमिडिटी वाला पार्ट है, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, मुंबई वगैरह, इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. देयर इज़ अ टर्म वी कॉल एज CVT, सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस. तो उसमें भी यही चीज़ होती है कि भाई वो ब्लड डिहाइड्रेशन होएगी, ब्लड थिकन हो जाता है, वो क्लॉट बन जाता है, एंड वो जो वेन है जो हमारी ब्लड को ब्रेन से ड्रेन करके हार्ट तक लेके आ रही है, उसको वो ब्लॉक कर देता है, एंड पेशेंट हैज़ अ ब्लीडिंग, ऑब्लिक स्ट्रोक, सिम्टम्स लाइक स्ट्रोक. तो वैसा होता है. स्पेशली कई बार आते हैं कि जैसे somebody we had seen some patients मुंबई से आए, यहाँ घूमने के लिए आए थे, गर्मियों के मौसम में आए, पानी इतना ज़्यादा पिया नहीं, वॉमिटिंग होगी बिकॉज ऑफ द हिली एरिया, तो डिहाइड्रेशन और ज़्यादा होगी, एंड देन दे सडनली टर्न अप टू अस विद हेडेक एंड मे बी सम वीकनेस, सीजर्स. और जब CT करते हैं या MRI स्कैन करते हैं तो उसमें हमें वो CVT, थ्रोम्बोसिस या ब्लीडिंग के वो सिम्टम्स वो मिलते हैं, चांसेस मिलते हैं. ओह माय गॉड. So yes, the water is intake very and important. hydration is very important. मतलब आप एक नींद और एक पानी, water and sleep are very important and they are generally free.
and we don't value it. एक I'll just ask you last question. You said that जो brain का dura matter है that is pain sensitive. So I have seen surgeries online, मतलब doctors have shared where patient की brain खोली हुई है and he's playing the violin guitar and piano, or guitar. I think Photos also had one of that Yeah, yeah, yeah. experience, something like that. So what is it? Just you can, if you tell our, this is We very call interesting. it as the awake craniotomies. Okay. बेसिकली कुछ एक ट्यूमर्स या कुछ एक डिजीजेज ऐसे हैं जिसमें हमने पेशेंट को उसको कोई वीकनेस ना आए या उसको कोई ऐसी नया सिम्टम हम ना दें जो कि पहले उसको नहीं था. तो उसमें कुछ एक और चीज़ें भी होती हैं कि हम मॉनिटरिंग करते हैं. स्पाइन के लिए नर्व मॉनिटरिंग होती है, ब्रेन के लिए भी ब्रेन मैपिंग करके मॉनिटरिंग होती है. वी डू न्यूरो नेविगेशन ऑल्सो, जिसमें हमें पता है कि कहाँ तक का ट्यूमर का एक्सटेंट है, हमने उतना ही निकालना है. एंड उसी का एक पार्ट है कि अवेक क्रेनियोटमीज. Okay. उसमें यह है कि इनिशियली जैसे पेशेंट को जब हम पहले तो उनको एक बार तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, देन कुछ पार्ट किया जाता है, एंड देन पेशेंट इज अगेन ब्रॉट बैक इनटू द सेंसेस, एंड फिर हम उस चीज को रिमूव करते हैं. पेशेंट से या तो बात की जाती है या तो जैसे उनको पेन नहीं फील होती? उस समय पेन, क्योंकि ब्रेन के अंदर का मैटर तो वो पेन सेंसिटिव नहीं रहेगा ना. ओके, तो पेन के जो ब्रेन के अंदर, सो आई हैव हर्ड कि उनकी ब्रेन खुद, मतलब नॉट हर्ड, आई हैव सीन इट, ब्रेन इज ओपन brain is open, the surgeon is doing the surgery, and this and the person patient is he is I mean having an interaction with the patient, and patient से आप बात कर सकते हो, patient को आप पूछते पूछ रहे हो कि आपको राइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप ये बोल के दिखाओ. क्योंकि वो जो पार्ट ब्रेन के इन्वॉल्व हैं तो हमें उन चीज को कवर करना है. तो उसमें क्या है कि अगर उसका से वी आर ऑपरेटिंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड पेशेंट में हैव अ वीकनेस ऑन द राइट साइड, सो हम उसमें बाकी चीजें जैसे मैंने बताया कि मॉनिटरिंग हो सकती है, प्लस ये भी एक पार्ट है कि भी हम उसको बात करते रहे, एंड अवेक क्रेनियोटमी में हम उसको पूछते रहते हैं कि अच्छा आपको अभी कोई वीकनेस या टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस तो नहीं लग रही है जी. तो ताकि अगर वैसा कुछ हो तो हम वहीं पे स्टॉप कर दें. हम उसको बेसिकली वी डोंट वांट टू गिव फर्दर डैमेज टू द पेशेंट. जो डिजीज ने कर दिया वो तो कर दिया, तो हम उस एरिया को डैमेज ना करें जिसकी वजह से पेशेंट को डैमेज हो. सो अवेक क्रेनियोटमीज आर इन थिंग नाउ, और ये काफ़ी पॉपुलर हैं और ये रेगुलर होती हैं, बट देर आर सर्टन इंडिकेशंस कि कौन से पेशेंट में करनी है, एज वाइज, देन पेशेंट को भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, पेशेंट को उस चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा, बिकॉज उसको भी एक तो मेंटल वो रहेगा ना कि भी मेरे ब्रेन की सर्जरी भी हो रही है और दूसरा बोल रहे हैं कि मुझे बात भी करो और मेरे को खोला हुआ है, यू नो, इट्स लाइक माय ब्रेन इज ओपन. वो चीज है, बट यस अवेक क्रेनियोटमीज आर बीइंग डन, and they are helpful So I don't know, doctor, I have such due respect for doctors now. When आप कभी विक्टिम बनते हो ऐसे किसी सिचुएशन के, तो देन वी रियलाइज दैट हाउ इम्पोर्टेंट, तभी कहते हैं, हमारी मूवीज में भी कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर है, एंड जिनके साथ बीतती है, आई थिंक दे रियली फील द सेम. एंड आई ऑल्सो हैव दैट एक्स्ट्रा ग्रैटिट्यूड आई ऑलवेज गिव टू यू एंड डॉक्टर खोसला. You've been amazing help to many patients. Thank you so much. You must search Dr. H.S. Barar. He's actually Lieutenant Colonel H.S. Barar, who had served army also as doctor. और आप इनके Google reviews देखो, people are just showering with love and affection for his attitude also, and how he treats his patient. So it's a pleasure to have you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Last note, any advice you would like to give to your our audience that they should be brain healthy? कुछ एक छोटी सी advice you think that you should do that? First thing is to have no tensions, or whatever least tensions we can have. Stay tension free. Stay tension free and stay healthy. Exercise is the most important thing. आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, आप चाहे मेंटल एक्सरसाइज जो हमने बोला कि पजल सॉल्व करो या कुछ भी करो, आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं अपने जो स्पाइन वाले पेशेंट्स हैं उनको आई राइट इट डाउन इन माय प्रिस्क्रिप्शन दैट दे हैव टू डू डेली वॉक्स फॉर 45 मिनट्स ट्वाइस डेली. सो इट्स अ थिंग दैट जो मैं प्रिस्क्रिप्शन स्लिप में लिख के दे रहा हूँ, जिसको आपने कहीं से खरीदना नहीं है, कुछ करना नहीं है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. सो एक्सरसाइज एंड हेल्दी ईटिंग, healthy habits, whatever, because of the eating and जो भी है. Alcohol and smoking, obviously I have explained everything, so we try to be away from them as much as possible.
and stay tension free. That's Stay tension free. And it's coming from a doctor who's himself so health conscious. We can see his muscles in a fit body. So, all we say and we conclude from this podcast is that stress free life, as doctor said, और खुश रहिए, exercise करिए और अच्छा खाइए. These are the basic things which is required to live a healthy brain life. So we sign off with this. Thank you so much.